کسی چیز کی پلاننگ کرنے میں اور اس مجوزہ پلان کو ایک خواب کی تعبیر کی صورت کی شکل میں اور اس کو شکل و شباہت کے ساتھ اسے مقدس کی صورت میں آپ کے حوالے کرنے کے لیے کتنی کاوشیں لگتی ہیں، کتنی محنتیں ہوتی ہیں، کتنی مشقتیں کرنی پڑتی ہیں۔ جو جلسہ کراتا ہے یا جو عرس کراتا ہے یہ ان سے پوچھا جائے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی اندھے سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کو اگر آنکھ مل جائے تو کیسا لگے گا، بالکل ایسا ہی لگتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے علامہ مناظر صاحب قبلہ بڑی محنت بڑی کاوش کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے معافی ضمیر کا اظہار کریں یہ مائک پر آ کر کے چند جملے تشکرات کے آپ کے یہاں آنے کی اور یہ علماء کرام کے یہاں جمع غفیر جو انہوں نے جمع کیا ان سب کی بارگاہ میں ہدیہ تشکرات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سے مخاطب ہو کر اپنے معافی ضمیر کا خشک سلوب انداز میں اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے میں چاہتا ہوں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں۔ محترم سامعین اکرام، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضرات، بعد مغرب سے لے کے اب تک جو آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں تقریباً ابھی 1 بج رہا ہے۔ انشاءاللہ ہر سال کے طرح ان سال بھی جلسہ کامیاب ہے، اور ہمارے ساتھی محترم دانش رضا صاحب جو نقیب جلسہ ہے بہت بہترین انداز میں آپ لوگوں کو شعر سنا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مسعود بھائی صاحب جو بہترین انداز میں ہر لہجے میں آپ کے سماعت میں شعر کیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مجھے یقین ہے کہ آج غوث پاک کے نام سے بہت شاعروں نے نعت خواہ نے منقبت پڑھی ہے، لگتا ہے کہ غوث پاک کا فیضان اب جاری ہو گیا ہے۔ یقین بھی ہے کیونکہ بہت مجمع کم ہے لیکن بہت گرم بھی ہے۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لئے درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم باری وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ منقبت کا 2-4 اشعار سماعت فرمائے۔ پلاتے ہیں دنیا کو جام محبت، ادھر شاہ سمنا ادھر اعلی حضرت، پلاتے ہیں دنیا کو جام محبت، ادھر شاہ سمنا ادھر اعلی حضرت، ادھر جن و شیطان کو کاٹا گیا ہے۔ بڑا سے بڑا کسی کو اگر خبیث بھوت شیطان چڑیل کچھ بھی پکڑ لے، ان کو کہاں لے جانا؟ ادھر ادھر مت لے جائیے۔ کہاں لے جائیے گا؟ کچھوچا شریف۔
वहाँ ले जाइए और वहाँ का जो तरीका है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लेके जाइए, नीर शरीफ में नहला दीजिए, उसका पानी पिला दीजिए और चौखट के सामने बैठाइए। मखदूम अशरफ का करम होगा, आपका बीमार शिफा पाके घर आ जाएगा। ये मखदूम अशरफ को अल्लाह ताला ने ये कुव्वत और ताकत बख्शी है कि कितनों बड़ा परेशान हो लोग, अगर वहां ले जाके बैठा देते हैं, नीर शरीफ में नहला देते हैं और पानी पिला करके मखदूम अशरफ के चौखट के सामने अगर बैठाते हैं तो अल्लाह ताला उस बीमारी को वह शिफा अता फरमाता है। तो मेरे दोस्तों शायर कहते हैं, इधर शाह सिमना उधर आला हजरत पिलाते हैं दुनिया को जामे मोहब्बत। इधर जिन्न शैतान को काटा गया है, उधर नजदियों को भगाया गया है। हमेशा से करते हैं दोनों हिफाजत, इधर शाह सिमना उधर आला हजरत। आज मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है फिलिस्तीन के सरजमीन पर। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला उस जंग को मुसलमान के हक में फतह अता फरमाए और मस्जिद अक्सा मुसलमानों को अता फरमाए। और ये कोई नई बात नहीं है। नमरूद पूरे खानदान को लेकर के, पूरी हुकूमत को लेकर के हजरत इब्राहीम के सामने आया था और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के पूरे खानदान को धूल चटवा दिया। इस्लाम में कोई फर्क नहीं आया। फिर क्या हुआ कि पूरी ताकत लेके फिरौन अपनी सल्तनत के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आया। अल्लाह ने तमाम फिरौनियों को गर्क कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। फिर क्या हुआ कि पूरी दुनिया के कुफ्र एक तरफ होकर के बद्र के मैदान में आया, 313 ने उनको धूल चटा दी। इस्लाम वहां भी जिंदाबाद है। फिर क्या हुआ कि पूरी दुनिया की हुकूमत को लेकर, पूरी दुनिया की ताकत को लेकर यजीद जैसे नापाक शख्स जो है करबला के मैदान में आके उभरा। इमाम हुसैन ने 72 को लेके पहुंचा और कहा है कौले खुदा है कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। पूरी ताकत यजीदियों की खत्म हो गई। इमाम हुसैन का सिक्का आज भी चल रहा है, ता कयामत तक चलेंगे। अब फिर क्या हुआ कि पूरी दुनिया में बकी बदअकीदों ने अपना अकीदा लेके सामने आया है, तो उनके लिए बरेली में एक इमाम अहमद रजा ही काफी है कि पिलाते हैं दुनिया को जामे मोहब्बत। इधर शाह सिमना उधर आला हजरत। और इस शेर को देखे, कभी शाह सिमना का दामन न छूटे, कभी आला हजरत से रिश्ता न टूटे, कभी आला हजरत से रिश्ता न टूटे, कभी शाह सिमना का दामन न छूटे, कभी आला हजरत से रिश्ता न टूटे। फदा दिल से इन पर है सुन्नी जमाअत, इधर शाह सिमना उधर आला हजरत। के छोछा की अजमत बरेली से पूछो,
बरेली की उल्फत कछो छा से पूछो, उन्हें मानते हैं सभी अहले सुन्नत, इधर शाह सिमना उधर आला हजरत। मेरे दोस्त वक्त नहीं है, बस दो चार जुमला गौसे पाक की शान में समाप्त कीजिए, उसके बाद फिर एक नात शरीफ और हो जाए, उसके बाद सलाम पढ़ लिया जाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबों को हमेशा हिदायत अता फरमाए। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया मुरीद होने के लिए। गौसे आज़म ने उनको मुरीद करने के लिए जब हाथ बढ़ाए तो गौसे पाक ने कहा कि तौबा करो कि आज से झूठ नहीं बोलूंगा। उसने तौबा किया। फिर गौसे पाक ने फरमाया ये काम नहीं करोगे, यानी जो गलत काम है उन कामों से तौबा कराए। आखिर में गौसे पाक ने फरमाया कि तौबा करो कि आज से मैं चोरी नहीं करूंगा। उन्होंने फट से हाथ खींच लिया, कहा कि हुजूर सारी बात आपकी मुझे मंजूर है, लेकिन मैं चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। आपको मुरीद करना है तो कीजिए, वरना मैं जा रहा हूँ। गौसे पाक ने देखा अच्छा मेरी बारगाह से बगैर हिदायत लेके ये वापस जा रहा। तो गौसे पाक ने फरमाया देखो चोरी करना तो गलत काम है, मैं इजाजत तो नहीं दूंगा, चलो तेरी बात कुछ देर के लिए मानता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, तुम मान लो। उसने कहा हुजूर आपकी सारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। गौसे पाक ने फरमाया एक काम करना, जब जब अजान का वक्त हो जाए तुम अजान कह देना, अजान दे देना। उसने कहा हुजूर मंजूर है। अब गौसे पाक ने मुरीद किया। उसके बाद वो शख्स घर गया। अब घर में सुबह अजान, शाम को अजान, जोहर असर मगरिब हर वक्त अजान ही अजान देते हैं। उनकी बीवी कहने लगी कुछ दिन के बाद, अरे खाली अजान ही दोगे कि चोरी भी करोगे, घर में खाने के लिए कोई चीज नहीं है। उसने कहा यही तो मैं सोच रहा हूँ कि हम कब चोरी करने जाए कि बीच में अजान का वक्त ना हो। उसकी बीवी ने मशवरा दी कि ईशा की अजान दे देना, चले जाना। ईशा की अजान वो शख्स दिया, चोरी करने के लिए घर से बाहर निकला। बगदाद में एक बड़े महल में घुसा। जैसे ही अंदर गया सोने और जवाहरात पर नजर पड़ी, हीरे और मोती पर नजर पड़ गई। अब वो इंसान क्या किया, धीरे धीरे जो है अपने बोरी पे उसको समेटने लगा। समटते समटते रात खत्म हो गई, सुबह का सफेदी नमूदार हो गया। वो शख्स जो ही अपने सर पे लाद के बाहर आया है, दरवाजे से बाहर होना था। याद आ गई बात कि गौसे पाक से मैंने वादा किया था कि जब अजान का वक्त होगा हम अजान दे देंगे। फजर का वक्त हुआ, उसने बोरी को सर से नीचे उतारा है, अजान कहना शुरू कर दिया है। इतने में घर वालों ने जाग गया और घर वालों ने कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। एक अल्लाह का नेक बंदा है, एक अल्लाह का बरगज़िदा बंदा है, एक अल्लाह का महबूब बंदा है जो आज तबलीग के लिए मेरे घर में आ गया है। वो लोग जल्दी से घर से बाहर निकलते हैं, वजू बनाते हैं। अब इस चोर की नजर पड़ गई कि घर वाले जाग चुके हैं, घर वाले बेदार हो गए हैं। इसने क्या किया, हो सकता है कि घर वाले कहेंगे नमाज पढ़ाओ। इतने में ये शख्स क्या किया, अजान खत्म करके नमाज में खड़े हो गए। इधर घर वाला वजू बना करके मुसल्ले पे आके बैठ गए। इनकी सुन्नत नमाज पूरी हो गई। घर वालों ने कहा हजरत आप इमामत फरमाइए, हम लोग जो है तकबीर पढ़ते हैं। गौसे आजम के वो मुरीद कहने लगा जो कहा था कि हम चोरी करना नहीं छोड़ेंगे। इधर बगदाद में गौसे पाक है, अपने महल में है, मुस्कुरा देते हैं। मुरीदों ने पूछा हुजूर आखिर क्या वजह है, अचानक आप मुस्कुरा देते हैं। गौसे पाक ने फरमाया ओ मेरे मुरीदों सुनो सुनो, वो जो चोर था मेरी एक शर्त मान करके आज वो फंस गया है, अल्लाह जाने वो कैसे निकलेगा। अब इधर वो चोर जो है इमामत के मुसल्ले पे खड़े होने वाले हैं। लोगों ने कहा हजरत आप मुरीद दिए, आप बहुत नेक बंदा है, तबलीग के लिए मेरे घर में आ गए हैं, वो भी सुबह सुबह सवेरे आ गए हैं, आप इमामत फरमाइए। इन्होंने कहा भाई मैं चोर हूँ, चोर आज से पहले कभी नमाज नहीं पढ़ी थी, आज से पहले मैं कभी इमामत
इमामत नहीं किया था, आज मैं इमामत कैसे करूंगा? अब तक तो मैं चोरी करता था, मैं चोर था। उसने कहा हजरत आप बचने के लिए ऐसा करते हैं इसलिए कि अल्लाह का अपने एक बंदा है, तबलीग के लिए मेरे घर में आ गए हैं, मेरे दरवाजे पे आ गए हैं। उस चोर ने कहा नहीं भाई, देखो मैं तुम्हारे घर से सामान चोरी करके लेके जा रहा था, तुम्हें यकीन नहीं आती है, देख लो इसमें। लेकिन वहां के लोगों ने कहा नहीं नहीं, हम इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे, आप इमामत फरमाइए वरना सूरज निकल जाएगा, नमाज कज़ा हो जाएगी। इतने में एक मुरीद जो है, उतने में एक शख्स जो है खड़े होकर तकबीर कहना शुरू कर दिया। इधर चोर मुसल्ले पे खड़ा हो गया, जो ही नियत किया अल्लाहु अकबर, वहां के लोगों ने भी नियत किया है। इधर नमाज खत्म होती है, नमाज जैसे ही खत्म हुई सलाम फेरा, वहां के लोगों ने उनका हाथ पैर चूमना शुरू किया। हाथ पैर चूमना ही था, वो चोर जो है गौसे आजम के दरबार के तरफ खड़े हो जाते हैं, वहीं से हाथ बांध के कहते हैं वाह मेरे गौस, मैं मान गया आपकी करामत को, आपकी मैं सारी बात मान लिया, मैं नहीं फंसा, एक बात मान करके इस तरह फंस गया, इस तरह फंस गया कि यहाँ के लोग मेरे हाथ पैर चूमते हैं। ए गौसे पाक, एक वक्त की नमाज मैंने पढ़ा है तो ये मर्तबा है, ये मकाम है, अगर पांचों वक्त की नमाज पढ़ूंगा तो मेरा मर्तबा क्या होगा, मेरा मुकद्दर चमक जाएगा। ए गौसे पाक, आज सच्चे दिल से हम वादा करते हैं कि आज से हम मर सकते हैं लेकिन किसी टाइम का नमाज नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए नमाज में ये बरकत रखी गई है। उसने कहा गौसे पाक आपकी एक बात मान लिया, 2 रकात नमाज फजर की पढ़ा है तो अल्लाह ने ये मकाम दिया है, यहाँ के लोग मेरा हाथ चूमते हैं, कभी पैर चूमते हैं, कभी पेशानी का बोसा लेते हैं। ए गौसे पाक, ये तो एक टाइम की इबादत है, अगर हम अल्लाह के लिए पांचों वक्त नमाज पढ़ेंगे तो ना जाने मेरा मुकद्दर कहाँ चमकेगा, मेरा मर्तबा क्या होगा। ए मेरे दोस्तों, उस चोर ने सच्चे दिल से वादा किया कि गौसे पाक आज के बाद जो है हम पांचों वक्त नमाज अदा करेंगे। तो मेरे दोस्तों, आप भी नमाज पढ़ा करें, हम भी पढ़ा करें, इसलिए कि नमाज के बगैर कोई छुट्टी नहीं है। कल मैदान माशर कायम होगा, सबसे पहला जो सवाल होगा वो आपसे और हमसे होगा, वो नमाज के बारे में होगा कि नमाज पर क्या आया है, कितनी रकात पर क्या आया है, किस दिन की नमाज कहाँ है। आकाए करीम फरमाते हैं जो एक रकात नमाज जानबूझ के छोड़ता है उसको करोड़ों साल जहन्नम में जलना होगा। ऐ मेरे दोस्तों, हमारी और आपकी तो ना जाने कितनी नमाजें छूट गई है, इसलिए इस महफिल में बैठ के सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा कर लो और अपना रिश्ता अल्लाह से जोड़ लो और कहो कि मौला आज के बाद हमेशा 5 वक्त नमाज अदा पढ़ने की तौफीक अता फरमा और जितनी कज़ा हो गई है उसे भी पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे भाई, जितनी नमाजें कज़ा हो गई है हर हाल में उसे अदा करना होगा, एक टाइम की भी नमाज आप पर माफ नहीं है। जो कज़ा हो गई उसे पढ़ के अदा कीजिए और जो बाकी है सामने आने वाली है उसको अदा पढ़ के अपनी जिंदगी गुजारिए। इसलिए कि मेरे दोस्तों, आप मर जाएंगे, आपके घर वाले घर में रह जाएंगे, तन्हा कब्र में आप रहेंगे, हिसाब वहां पे आपका होगा, मैदान महशर कायम होगा, कोई किसी का नहीं होगा, सूरज सर पे होंगे, जमीन तांबे की होगी। ऐसे आलम में जो है अल्लाह की बारगाह में हर एक को अपना हिसाब देना होगा, हर एक को अपने बारे में बताना होगा। दुनिया में था तो क्या किया, कितनी नमाजें पढ़ा है, कितना रोजा रखा है। आज कोई मजदूर कहीं काम करता है, किसी सेठ के पास नौकरी करता है, अगर वो सेठ कह दे अगर कल तुम देर से आए, कल तुम देरी किया काम पर तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा, वो मजदूर क्या करता है, वो नौकर क्या करता है, पूरी रात जो है
बेचैनी के साथ रात गुजारता है, इसलिए कि कल जाने में कोई ताखिर ना हो जाए, कल जाने में देर ना हो जाए, वरना नौकरी से निकाला जाऊंगा, काम छोड़ के आना पड़ेगा। ऐ मेरे दोस्तों, 10,000 की नौकरी पर अगर सेठ आपसे कहता है कल अगर देरी किया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, वो खुदा रहमान है, वो खुदा कहता है ऐ मेरे बंदे जितनी नियामतें लेना है ले ले, लेकिन नाफरमानी करके आएगा तो तुम्हें जहन्नम में जलाऊंगा, नाफरमानी करके आएगा दोज़ख में डालूंगा। इसलिए मेरे भाई फरमा बरदारी दुनिया में करके जाइए और अल्लाह की इबादत कर कीजिए, अल्लाह को मनाइए, रसूल को मनाइए, रसूल पाक के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारिए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सब की खता को, हम सब के गुनाह को अपने हबीब के सदके में माफ फरमा दे और अपने हबीब के सदके में हम सब को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा दे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस कुछ देर और 5 मिनट बैठिए, मैं एलान सर साहब को भी नहीं कहूंगा कि आप आइए, बस 5 मिनट बैठिए, मौलाना हन्नान साहब से कुछ 2-4 जुमला गुफ्तगू समाप्त कीजिए, उसके बाद सलातो सलाम पढ़ लीजिएगा।